मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਆਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਣੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਜਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਪਰਫੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਦੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਟੌਪਿਕਸ and one of course the structures of various compounds। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਮ ਔਨ ਟੂ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ that is the structure of sodium chloride। clear? ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ that is ਕਿ ਜੋ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਹੈ they make CCP ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ FCC lattice। clear? so CCP or FCC lattice, so basically they are present at the corners plus face centers। फाइन बच्चे। सो कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूशन कितनी होगी 8 into 1/8 प्लस फेसेस पे 6 into 1/2। सो बेसिकली पर यूनिट सेल मेरे पास कितने क्लोराइड आयंस है 4। तब बच्चे ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1:1। ਸੋ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨਸ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 4। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। सोडियम ਤੇ क्लोरीन ਦੀ आपस ਚ रेशो 1:1 है। सो अगर सोडियम क्लोरीन आयंस क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल 4 है तो सोडियम भी 4 ही होंगे, ठीक है। सो नाउ सोडियम आयंस ये किथे लोकेटेड है बच्चे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे। नाउ वी नो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किथे किथे होंदियां ने बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर्स। सो क्यूब दे सेंटर ते प्लस एज सेंटर्स ते। सो क्यूब दे सेंटर ते 1, एज दे सेंटर्स ते 12 एजेस इनटू 1/4। सो देखो अगेन अपने पास नंबर ऑफ सोडियम आयंस पर यूनिट सेल कितने आ गए बच्चे 4। क्लियर? डन डन। नाउ सो अपने पास सोडियम एंड क्लोरीन। सो अपने पास सोडियम इज टू क्लोरीन पर यूनिट सेल कितना हो गया बच्चे 4:4 यानी कि 1:1। ठीक है ना बच्चे। ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, मतलब कॉमनली बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसको कोऑर्डिनेशन नंबर दे नाल। एक ही है नंबर ऑफ सोडियम। अच्छा सो अपने को Z दी वैल्यू, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज the value of Z ਆਪਾਂ 4 ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਤੇ 4 ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ 4 ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ योर Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ Z ਇਜ਼ 4। ਡਨ ਆਈ ਹੋਪ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਤੇ, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग, ठीक है। सो नाउ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਰੇਡੀਅਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। that will be equal to radius of cation upon the radius of anion ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। सो जो सोडियम आयंस ने they are 95 picometers in size, क्लोराइड आयंस आर 181 पिकोमीटर्स इन साइज। सो जो तुसी इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 0.524। अपने को कितनी वैल्यू आ गई बच्चे 0.524। सो इसको अपन को पता लग रहा है कि दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी 0.414 तो लेके 0.732। दिस इंप्लाइज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या है कि each sodium is surrounded by 6 chlorides
and each chloride is surrounded by 6 sodium plus ions. I hope this is well and fine. ठीक है, सो हर एक सोडियम के आले दुआले अपने को 6 क्लोराइड्स हैं एंड हर एक क्लोराइड के आले दुआले अपने पास 6 सोडियम आयंस है बच्चे. डन आई होप. नाउ स्ट्रक्चर केड़ा बन गया? नेचुरल है, ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, सो दिस इज अनदर पॉइंट. क्लियर? हुन बच्चे अपने कोल ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਲਾਈਡਸ ਆਫ alkali metals except cesium. सो cesium ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ alkali metals ਦੇ ਹੈਲਾਈਡਸ KCl KBr RbCl सब यही स्ट्रक्चर छोड़ेंगे. याद है ना अपन न्यूमेरिकल्स ਦੇ ਟਾਈਮ KF ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੈਲਾਈਡਸ ਆਫ ਐਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਐਕਸੈਪਟ ਸੀਜ਼ੀਅਮ. ਤੇ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਹੈਲਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨਸ ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਬਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ. ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, Z=1. ਚਲੋ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਸੋ ਹੈਲਾਈਡਸ ਆਫ ਐਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਐਕਸੈਪਟ ਸੀਜ਼ੀਅਮ. ਨੰਬਰ 2 एमोनियम हैलाइड्स. ठीक है. नंबर 3 सिल्वर हैलाइड्स एक्सेप्ट AgI. AgI नु छड़ के बाकी सारे दे सिल्वर हैलाइड्स. ठीक है ना. सो AgCl AgF AgBr. फाइन. नंबर 4 सो सिल्वर दे हैलाइड्स. ठीक है ना, समझ गए? नेक्स्ट एग्जाम्पल इथे जो गिवन है दैट इज FeO. डन. एंड लास्ट इज 5th ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप 2. ठीक है ना. मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, उन सब दे स्ट्रक्चर्स भी यही होंगे अगेन एक्सेप्ट BeS, एक्सेप्ट बेरिलियम सल्फाइड. सो बेरिलियम सल्फाइड ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ सोडियम क्लोराइड टाइप. देखो ਹੁਣ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ AgCl ਦਾ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ Cl नेगेटिव FCC बनाएंगे, Ag पॉजिटिव, ऑक्टाहेड्रल होल्स. अपन ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ कैल्शियम ऑक्साइड का की स्ट्रक्चर होगा? ऑक्साइड आयंस FCC बनाएंगे एंड कैल्शियम आयंस ऑक्टाहेड्रल होल्स. सो सब कुछ सेम. ठीक है. एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम ब्रोमाइड, एमोनियम आयोडाइड, इन सब का की स्ट्रक्चर होगा? क्लोराइड ब्रोमाइड या आयोडाइड बनाएंगे FCC ਤੇ एमोनियम आयंस जाएंगे ऑक्टाहेड्रल होल्स. सो डिट्टो सब दा सेम. Clear? Now, so we shall move on to the next structure now. So अब अपने next structure पे move कर रहे हैं and the next structure that needs to be discussed is cesium halide. ठीक है. सो पहला तो अपन को पता होना चाहिए कि क्लोराइड आयंस दे फॉर्म सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, यानी कि 8 into 1/8. सो पर यूनिट सेल कितने क्लोराइड आयंस है? ओनली 1. तो सीजियम भी कितने होंगे? 1, क्योंकि रेशो कितनी है? 1:1. ठीक है. सो जो सीजियम आयंस ने दे गो इनटू द बॉडी सेंटर. ठीक है. सो अपने को सीजियम आयंस भी कितने हैं बच्चे? ओनली 1. सो अपने को Z दी वैल्यू सीजियम क्लोराइड दे केस कितनी आएगी? 1. गल समझ गए ना? ठीक है. क्लोराइड आयंस फॉर्म सिंपल क्यूबिक लैटिस. सो पर यूनिट सेल कितने क्लोराइड्स है? 1.
पर यूनिट सेल कितने सीजियम है 1, सो पर यूनिट सेल कितने सीजियम क्लोराइड है 1। डन, आई होप यू गेट, ठीक है। नाउ सो नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड, अगेन द रेडियस रेशियो। ਹੁਣ देखो बच्चे रेडियस रेशियो कैलकुलेट करने की भी अपन जरूरत नहीं, वैसे तो 8 कॉर्नर्स है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਲ ਦ 8 ਕਾਰਨਰਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 8। ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द केटायन अपॉन द रेडियस ऑफ एनायन। सो क्लोराइड का अपन ने पिछले क्वेश्चन यूज किया ही है, कितना सीगा 181, सीजियम ਹੁੰਦਾ 169, सो ये आ जाएगा 0. सो आप वैल्यू कॉपी कर लेते हैं 0.934, ठीक है। डिवाइड करके इतनी वैल्यू आ गई बच्चे। नाउ वी नो कि दिस वैल्यू इट फॉल्स अंडर कितने रुक रहा है 0.732 तो लेके 1, सो दिस इंप्लाइज coordination number is equal to 8 and the structure of the unit cell is body centered cubic। so देखो बच्चे ये किथे गए कॉर्नर्स, ये बॉडी सेंटर, तो ओवरऑल की बन गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बट अपन इथे z दी वैल्यू 1 पुट करनी है, 2 नहीं पुट करनी, क्योंकि नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल कितने हुए 1। देखो जेड़ा दो वैल्यू आंदी है BCC दे केस च ओदे च एक क्लोराइड है एक सीजियम है, तो टोटल तो 2 हो ही गया। बट यस z दी वैल्यू 1 आएगी क्योंकि टोटल सीजियम क्लोराइड कितना होया 1। डन। नाउ सो दिस इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड दिस इज योर एक्चुअल प्लेसमेंट कि वो किथे किथे पए है बच्चे, ठीक है ना। नाउ हुन अपने कोल अदर एग्जांपल्स जो सेम सीजियम क्लोराइड वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो सीजियम दे सारे हेलाइड्स पहला था सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम साइनाइड का स्ट्रक्चर भी यही होएगा, ठीक है। एंड जो थैलियम होता है एल्यूमिनियम फैमिली, सो थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड एंड थैलियम आयोडाइड। आप करते हैं ना कि जो बोरॉन फैमिली आउटर शेल च वैसे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, बट थैलियम शोज ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ओदे विच s इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते बच्चे। क्लियर है, ठीक है। नाउ हुन एक चीज और, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। एक चीज और देखो बच्चे, हुन सपोज मेरे को सोडियम क्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, कोई भी कंपाउंड है AB जिसका सोडियम क्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ठीक है। थोड़ा नहीं लग रहा कि अगर मैं उसके ऊपर प्रेशर लगा दूं, प्रेशर बढ़ा दूं, ठीक है, तो मैं प्रेशर बढ़ा के की कर सकता है पास ले आऊंगा मॉलिक्यूल्स नु, आयंस नु, the coordination number will increase, so increase of pressure will change its structure to cesium chloride type, यानी कि उसका coordination number की हो जाएगा 8। उल्टा अगर मैं cesium chloride नो की कर दूंगा बच्चे heat, अगर मैं उसका temperature increase कर दूंगा तो temperature increase होने नाल चीज की हो जाती है expand, expand करके coordination number decreases। सो एक घट कोऑर्डिनेशन नंबर वाले नु हायर कोऑर्डिनेशन नंबर लेके जाना है तो मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा, अगर ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर वाले नु घट कोऑर्डिनेशन नंबर पे लेके आना है तो मैं टेंपरेचर इंक्रीज कर दूंगा बच्चे। आई होप दिस इज वेल एंड फाइन, क्लियर, ठीक है। सो नाउ वी शैल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट स्ट्रक्चर। आ जाओ बच्चे। So come on to our next structure that needs to be discussed, and it is the structure of zinc sulfide।
सो नेक्स्ट जो अपन ने डिस्कस करना है दैट इज ZNS, ठीक है। ZNS ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਦੋ ਮਤਲਬ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਬਲੈਂਡ ਸਟਰਕਚਰ और एक होता है वुडसाइड टाइप। WURTSIDE, सो जिंक ब्लेंड टाइप एंड वुडसाइड टाइप, ठीक है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। सो देखो एक माइनर सा डिफरेंस है बस, जिंक ब्लेंड टाइप की है जो सल्फाइड आयंस ने दे फॉर्म CCP लैटिस, ठीक है। CCP एक तरह का FCC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਲਫਾਈਡ ਆਇਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ 4। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਜ਼ਿੰਕ 2+ ਹੈ ਦੇ ਆਕਿਊਪਾਈ ਟੈਟਰਾहेड्रल ਹੋਲਸ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। अगर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 है तो टेट्राहेड्रल होल्स कितने होंगे डबल यानी कि 8, ठीक है ना। ते जे जिंक 8 हो गए तो 4 दे डबल हो गए तो फार्मूला ZNS नहीं ना बनया, फिर तो अपने को Zn2s बन गया, डबल हो गए है ना। सो की होएगा जिंक विल ऑक्यूपाई अल्टरनेट टेट्राहेड्रल होल्स। सो 8 विचों 4 ऑक्यूपाइड होंगे, 4 खाली होंगे। सो कंट्रीब्यूशन कितनी होगी अगेन 4। सो 4:4 यानी कि 1:1। सो जिंक सल्फाइड दे केस Z दी वैल्यू कितनी आएगी 4, ठीक है। नाउ बस वुडसाइड टाइप की है, कुछ भी नहीं बस डिटो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਲਫਾਈਡ ਆਇਨਸ ਨੇ ਉਹ CCP ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇ ਫਾਰਮ HCP लैटिस एंड जिंक 2+ जो है दे ऑक्यूपाई alternate tetrahedral holes। गल ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ HCP ਵੀ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ FCC ਦੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਹੀ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਬਲੈਂਡ ਟਾਈਪ ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਲਫਾਈਡ ਆਇਨਸ ਫਾਰਮ CCP लैटिस ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ HCP लैटिस, ठीक है ना। सो Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ 4, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू radius ratio। so radius ratio is equal to radius of cation upon the radius of anion, ठीक है। सो अपने कोल जिंक दी रेडियस हैगी है बच्चे 74 अपॉन सल्फाइड आयंस दी हैगी है 184, जिसनु सॉल्व करके अपने कोल आ जाएगा 0.4। Now this falls in the range 0.225 to लेके 0.414। so coordination number is equal to 4 and the structure is tetrahedral, geometry becomes tetrahedral, ठीक है। so this is the structure of zinc sulfide कि सल्फाइड आयंस दे फॉर्म CCP या HCP लैटिस ते जिंक 2+ दे गो इनटू अल्टरनेट एक एक छड़ के टेट्राहेड्रल होल्स। होर कौन-कौन बच्चे जिंक सल्फाइड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दे विच आपां नूं मिलूगा, ठीक है। सो एक ता नंबर 1 हुण ਜਿਹੜੀਆਂ एग्जांपल्स आपां ने छड्डियां सी एल्कली मेटल्स दे हैलाइड्स सॉरी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दे ऑक्साइड्स ते सल्फाइड्स जो आपां ने BeS छड्डिया सी। सो BeS जिंक सल्फाइड टाइप च आऊगा। सिल्वर दे हैलाइड्स जो आपां ने AgI छड्डिया सी वो भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, प्लस कॉपर दे हैलाइड्स आ जाएंगे बच्चे CuCl CuBr CuI। ਹੁਣ ਕੱਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਫਾਰਮਸ CCP लैटिस and silver goes into alternate tetrahedral holes। beryllium sulfide ਦਾ ਆਂਦਾ ਤਾਂ sulfide forms CCP लैटिस and beryllium goes into the tetrahedral holes।
देखो बच्चे ध्यान नाल करना है। हुण कल अगर बेरिलियम दा ऑक्साइड आंदा तो NaCl टाइप है, सल्फाइड सिर्फ किस दे विच है, जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर दे विच। क्लियर नाउ? आई होप दिस इज डन। क्लियर नाउ? सो आप नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पे आपने ते मूव कर रहे हैं। एक सेकंड बच्चे, so we shall move on to our next type of structure. So the next is the structure of calcium fluoride, CaF2. This is called fluoride type of structure. ठीक है? सो कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर की होएगा बच्चे? सो देखो कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इजी। सो देखो कैल्शियम 2+ आयंस, केटायंस विल फॉर्म CCP लैटिस। देखो बच्चे नॉर्मली ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ केटायंस ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਲਸ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ एनायंस लैटिस ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? CCP लैटिस एंड जो F नेगेटिव है, सो अपन को वैसे ही आइडिया लग रहा है कि डबल ने, सो दे विल गो इनटू द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है? सो ये सेम CCP FCC के बराबर, यानी कि कितने हो गए 8 into 1/8 plus 6 into 1/2 is equal to 4। टेट्राहेड्रल होल्स इज तो डबल, यानी कि 8। सो Z ਦੀ वैल्यू कितनी आ गई बच्चे अपने पास? हाँ जी, एक यूनिट सेल दे विच 4 कैल्शियम है, 8 फ्लोरीन्स है। एक न्यूमेरिकल भी आपने सॉल्व कीता सी इदां दा, सो अपने को Z आ गया 4। ठीक है ना? सो टोटल मिलके मेरे को 4 कैल्शियम फ्लोराइड्स बन गए। सो देखो 4 कैल्शियम फ्लोराइड दे विच 4 कैल्शियम आ गए और 8 फ्लोराइड्स आ गए। आई होप दिस इज डन। ठीक है? इजी है। नाउ सो इस दे विच आपां नूं रेडियस रेशियो वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? नाउ बच्चे हुण कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर आपां गल करिए, क्योंकि हुण इत्थे कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा ना, दोनों की गिनती बराबर बराबर नहीं हैगी। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम 2+ is equal to 8 and coordination number of F negative is equal to 4, यानी कि each calcium is surrounded by 8 fluorides and each fluoride is surrounded by 4 calciums। ठीक है बच्चे? सो नेक्स्ट एंड लास्ट, सो अपने को होर किहड़े-किहड़े एटम्स है जो इस दे विच एग्जिस्ट करदे हैं? सो बच्चे बेसिकली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दे हैलाइड्स। ठीक है ना? जिद्दां कि BaF2, BaCl2, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड। अच्छा, एक लेड दे हैलाइड्स विल आल्सो एग्जिस्ट, सो लेड फ्लोराइड एटसेट्रा। ठीक है? बट इस केस में अपन को एग्जांपल्स बहुत घट मिलणगियां, रीजन बीइंग द सेम कि अपने को नॉर्मली एनायंस दा साइज बड़ा हुंदा है, ना कि केटायंस दा। तो एनायंस लैटिस बनाते हैं, केटायंस होल्स जाते हैं। बट दिस इज कि केटायंस लैटिस बना रहे हैं और एनायंस होल्स जा रहे हैं। सो इज द एग्जैक्टली उल्टा। डन? इसका हुण आपां एग्जैक्टली उल्टा करांगे अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। सो स्ट्रक्चर इज सोडियम ऑक्साइड। इसको आपां कहते हैं बच्चे कि एंटी फ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। सो दिस इज योर एंटी फ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। हुण इस दे विच की होएगा कि ऑक्साइड्स फॉर्म CCP लैटिस। सो देखो इत्थे केटायन ने लैटिस बनाया सी, उत्थे एनायन ने, एंड जेडे सोडियम प्लस ने वो डबल ने, दे गो इनटू टेट्राहेड्रल होल्स। सो पर यूनिट सेल 4 ऑक्साइड्स है और 8 सोडियम प्लस है। सो Z दी वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 4। क्लियर?
अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की गल करिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड कितना हो गया 8 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस कितना हो गया 4। ठीक है, सो सारा कुछ उल्टा हो गया। ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्साइड एंड ईच ऑक्साइड इज सराउंडेड बाय 8 सोडियम, क्योंकि सोडियम डबल है बच्चे। ठीक है ना। नाउ इन्हां दियां एग्जांपल्स Li2s, K2s, sodium sulfide, K2O, etc. बहुत है। ठीक है, so these are your compounds which have anti-fluoride type of structure. So अपन ने दो structures और cover कर ले, fluoride and anti-fluoride. I hope this one is clear. ठीक है, डन नाउ, इजी नाउ। ਹੁਣ अगेन ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪੈਰਲਲ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਐਂਡ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ स्पाइनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। किसका कीता सी बच्चे अपन ने MgAl2O4। ठीक है, सो बेसिकली इफ यू रिमेंबर अपन ने की कीता सी, अपन नु फार्मूला दिता होया सी ते अपन नु पूछया सी कि कितने परसेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड, अगर सुनो याद हो। ठीक है ना। सो बच्चे दिस इज मेड अप ऑफ 3 स्पीशीज, Mg+2, aluminium +3 and of course oxide ions। oxide ions they form CCP lattice, so उन्हां दी गिनती कितनी होगी 4 per unit cell। aluminium जानदे सी बच्चे octahedral holes च, magnesium जानदे सी tetrahedral holes च। ठीक है, सो हुण आपां नूं क्लियरली दिख रहा है कि अगर नंबर ऑफ ऑक्साइड्स आर 4 ਤਾਂ ਟੈਟਰਾहेड्रल होल्स ਉਸ ਤੋਂ ऑक्टाहेड्रल ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4। अगर ये चार ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 4। ਸੋ ਸਿੰਸ ਇਟ ਇਜ਼ 2, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਟ ਆਕਿਊਪਾਈਜ਼ ਹਾਫ ਆਫ ऑक्टाहेड्रल होल्स। सो याद होगा ਆਪਾਂ ਨੇ 50% आंसर भी ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ठीक है ना। एंड सिमिलरली सो हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स यानी कि कितने हो गए ये 2 एंड ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ आंसर, क्योंकि 1 है तो टेट्राहेड्रल होल्स दा 1/8 ही ऑक्यूपाइड है, क्योंकि ये 8 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 8 ਚੋਂ ਇੱਕ ऑक्यूपाइड होगी तो मैग्नीशियम कितना हो गया 1। क्लियर, सब ਨੂੰ याद होगा ये। ठीक है ना। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ कि अगर देखो ये टेट्राहेड्रल होल्स अगर एटम्स 4 है तो कितने हो गए 8, तो अगर 8 ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 8 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ऑक्यूपाइड है। सो 1/8 into 100 ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ 12.5%। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इसी टाइप के ऊपर बेस्ड आप मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ Fe3O4, जिसको बच्चे आप बोलते हैं इनवर्स स्पाइनल टाइप, यानी कि इसका उल्टा। ठीक है, ਹੁਣ बेसिकली Fe3O4 ਦਾ एक्चुअल फार्मूला ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है FeO डॉट Fe2O3। ठीक है, सो बेसिकली ऑक्साइड आयंस ਤਾਂ -2 ਹੈਗੇ ਨੇ, बट आयरन्स +2 एंड +3 है। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, मैग्नीशियम 2+ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 1, सो आयरन 2+ कितना होया 1, एल्यूमीनियम 3+ कितने हैं 2, 3+ वाले आयरन कितने ने 2, ऑक्साइड -2 है ने, यानी कि मैंने आई भी लिख सकता है Fe2O4। गल समझ गए ना बच्चे। देखो मैं किवें लिखता है इसको, दिस इज -2, दिस इज +2, दिस इज +3। सो जिवें ए बनया होया है डाइवेलेंट ते ट्राइवेलेंट केटायंस दा, सो सेम बन गया। ठीक है, बट उसके स्ट्रक्चर को आप इनवर्स स्पाइनल क्यों कहते हैं, क्योंकि हुण मैं इन्हां दी प्लेसमेंट दसदा तुहानूं। देखो
this is Fe plus 2, this is Fe plus 3 and oxide. So oxide बच्चे इत्थे भी CCP ही बना लेंगे. So per unit cell कितने oxide हो गए अपने कोल 4. हुन spinal की हो रहा है जिन्हें divalent ने they are going into tetrahedral holes. ठीक है, इत्थे जिन्हें divalent ने वो कित्थे जाएंगे into octahedral holes. समझ गए? ठीक है, जिन्हें ट्राइवेलेंट ने वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बिटवीन ऑक्टाहेड्रल होल्स एंड टेट्राहेड्रल होल्स. समझ आ गई गल? ये जेड़ा एक है ये किथे जाऊगा ऑक्टाहेड्रल दे विच. तो देखो बच्चे रिजल्ट वही निकलिया. टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल होल सी 4, 4 विचों कितने ऑक्यूपाई हो गए 2. ठीक है, टेट्रा कितने सी 4 एटम्स ली 8, 8 विचों कितने ऑक्यूपाई होए 1. बस फर्क की आ गया. इथे टेट्रा नु कौन ऑक्यूपाई कर रहा है ट्राई पॉजिटिव. इथे टेट्रा नु किने ऑक्यूपाई कीता सी डाई पॉजिटिव. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनवर्स स्पाइनल. सो ये बन गया अपने कोल 2 और ये बन गया अपने कोल 1. क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Fe3O4 बच्चे. ठीक है ना. सो ये कुछ मेजर टाइप्स ने, मेजर काइंड्स है जो अपन ने करनियां ने. ठीक है ना. क्लियर कि नहीं? सो NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, स्पाइनल एंड मैग्नीटाइट. Fe3O4 है ना. आप इसको कॉमनली केड़ा और बोल देने हैं मैग्नीटाइट और. एंड इट हैज इनवर्स स्पाइनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. सो बच्चे ये कुछ स्ट्रक्चर्स अपने सिलेबस च सी ये तुसी कर लेने हैं. हुन मैं सानू 2 न्यूमेरिकल्स करवाने ने रिलेटेड टू imperfections. ठीक है ना. तो ये 2 न्यूमेरिकल्स करके अपना चैप्टर पूरी तरह वाइंड अप हो जाएगा. ठीक है ना. इस तो अलावा एक दो टॉपिक्स और भी ने इस चैप्टर च. अगर आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, बट दे आर नो मोर इनटू योर सिलेबस नाउ. ठीक है ना. सो नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद योर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू imperfections. सो बच्चे मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं सानू. ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लियो. द क्वेश्चन सेज an oxide has empirical formula M0.96O. M0.96O. calculate the percentage of M plus 2 and M plus 3 ions. हुन बच्चे पहला क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन की है. ठीक है ना. देखो ध्यान नाल सुनो. पहला तो एक क्वेश्चन किहड़े टॉपिक नाल रिलेटेड है. दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. मेटल डेफिशिएंसी दे विचों केड़ा कीटायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स. देखो किवें, देखो दा मतलब की है. इधर देखो बच्चे. सो अपने कोल एक ऑक्साइड है MO है ना. ते MO ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ M+2 O2- M+2 O2- and so on. ठीक है. सो ये बच्चे ऑक्साइड है. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਦ M+2 ਕੇਟਾਇਨਸ ਦੇ ਗੋ ਮਿਸਿੰਗ. ਸੋ ਇਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ. ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕੇਟਾਇਨਸ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੰਕਰੀਜ਼. ਸੋ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ +4 ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ. सो दो ने अपना चार्ज +3 कर लिया. हुन मेरी गल सुनो. देखो बच्चे बेशक चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया. पहला मेटल ते ऑक्सीजन दी रेशियो कितनी सी
1:1। ਹੁਣ अगर ऑक्सीजन 1 है तो मेटल का डिक्रीज हो गया ना, सो अब मेटल डिक्रीज हो गया। गल समझ आ गई कि नहीं? यानी कि कुछ ना कुछ m मिस हो गए ਤੇ m ने अपना चार्ज ਵਧਾ के चार्ज ਤਾਂ बैलेंस कर लिया, बट m ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਬੱਚੇ, ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਟਾਇਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? m+2 n+3। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 0.96। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ m+2 ions is equal to x, then the number of m+3 ions कितना हो गया बच्चे, 0.96 minus x। आ गल तो समझ आ गई ना? और ठीक है कि नहीं? एक ऑक्सीजन पीछे टोटल m कितने हैं, 0.96। अपन ने +2 वाले x एज्यूम कर ले, +3 वाले कितने हो गए, 0.96 minus x। हाँ जी, नाउ total charge on m, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਵੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ 1 m ਉੱਪਰ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਰਹੂਗਾ, +2। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ -2 ਹੈ ਤਾਂ m ਤਾਂ +2 ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਔਨ m इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, +2 into x। So this implies +2 into x plus, हाँ जी, 0.96 minus x into +3। गल समझ के ना? +2 चार्ज वाले x ने, +3 चार्ज वाले n ने है। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना है, ऑफ कोर्स +2। इथों बच्चे मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, x की वैल्यू मैं बुक चो कॉपी कर लेना एक बार। सो इट कम्स आउट टू बी 0.88। क्लियर? सो मेरे को m+2 आयंस कितने आ गए, 0.88 आउट ऑफ 0.96। तो यानी कि m+3 कितने रह गए बच्चे, 0.96 माइनस 0.88, यानी कि आ गया अपने को 0.08। I hope this is fine, clear? हाँ जी, so अपन क्वेश्चन की पूछा गया, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ। सो नाउ परसेंटेज ऑफ m+2 इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चे इत्थे भी ध्यान रखना है, कई बच्चे फिर की करते हैं, इनू 88% लिख देंगे ने, इनू 8%, तो फिर तो टोटल 96 ही बने। ठीक है, सो अपन परसेंटेज किवें कढांगे, 0.88 टोटल कितना है, 0.96 into 100। सो m+2 दी आ गई, m+3 दी या तो ऐ काट लो 0.08 अपॉन 0.96 into 100, या जितनी परसेंटेज ਇੱਥੇ आ जाऊगी ਉਹਨੂੰ 100 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है ना? कितनी आ रही है ਆਪਾਂ देख ही लेने हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी 91.66%। 91.66%। सो इसको अगर मैं 100 चों माइनस करा बच्चे, ठीक है, तो मेरे को कितना आएगा, 34 and 8। सो यानी कि +3 की परसेंटेज कितनी बन गई, 8.34%। क्लियर? 100 चो माइनस करके, सो अपन लिखांगे परसेंटेज ऑफ m+3 आयंस इज इक्वल टू 8.34%। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन जो कैन अराइज फ्रॉम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे अपन आयरन के ऊपर आ जाए, चाहे जिंक के ऊपर आ जाए। अगर यही क्वेश्चन देखो आयरन च आना होगा तो बस ऐसा लिख देंगे बच्चे कि अपने को जो आयरन का कंपाउंड है उसका फार्मूला है 0.95O। ठीक है, तो उदा ही तुसी तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ आयंस। तो उदा ही अपन Fe2+ ਨੂੰ ਐਜ਼ੂਮ ਕਰਾਂਗੇ x, 3+ ਨੂੰ ਐਜ਼ੂਮ ਕਰਾਂਗੇ 0.95 minus x। Clear? Let's move on to the next question. So one numerical is this, ठीक है, जो अपन ਨੂੰ imperfections ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ, ਤੇ अगर कोई होर आ सकता है तो that can come from impurity defects। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इस दिन
जिस दिन आपने इंप्योरिटी डिफेक्ट्स डिस्कस कीते सी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਬਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੇਖੋ क्वेश्चन इज ठीक है क्वेश्चन इज सोडियम क्लोराइड is doped with 10⁻³ mole percent of कैल्शियम क्लोराइड अच्छा यहां यदि जगह पे आया होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड मैं दोनों केस से सॉल्व करवा दूंगा ठीक है ना सोडियम क्लोराइड इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल परसेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैकेंसीज सो कितने वैकेंसी डिफेक्ट्स अपने को आ जाएंगे ठीक है नाउ याद होगा ना सानू इंप्योरिटीज ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਟਾਇਨ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਪਲੱਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 2+ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 3+ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਾਏ ਹੈ ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ calcium ions is equal to 10⁻³ upon 100 is equal to 10⁻⁵ moles clear percentage ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ moles ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2+ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ +1 ਸੋ ਇੱਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ दो सोडियम्स क्योंकि चार्ज तो बराबर रहूगा एक सोडियम की जगह पर एक कैल्शियम आ गया बट दूसरा सोडियम की रह जाएगा खाली सो एक वैकेंसी क्रिएट होगी पर कैल्शियम आयन यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इज इक्वल टू 10⁻⁵ मोल्स यानी कि 6.02 into 10⁻⁵ 23 into 10⁻⁵ यानी कि 6.02 into 10⁻18 वैकेंसीज अपने कोल बचे आएंगे अगर यही क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏ ਫਾਈਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 3+ ਆਇਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10⁻⁵ moles या कह लो 6.02 into 10⁻18 ions ठीक है सो इतने आयंस आ रहे हैं पर हुन इथे प्रॉब्लम की है एल्यूमीनियम 3+ है एक एल्यूमीनियम अगर अंदर आऊगा तो कितने सोडियम बाहर जाएंगे 3 क्योंकि चार्ज तो बराबर रहूगा ना बच्चे 3 सोडियम्स विल मूव आउट उन्हां विचों एक सोडियम की जगह तो एल्यूमीनियम आ गया दो रह गए खाली सो जिन्ने एल्यूमीनियम अंदर आएंगे कितनी वैकेंसीज क्रिएट होंगी 2 सो वैकेंसीज विल बी 2 into 6.02 into 10⁻18 सो यानी कि 12.04 into 10⁻18 1.2 into 10⁻19 वैकेंसीज अपने पास आएंगी ठीक है सो दिस इज अबाउट इंप्योरिटी डिफेक्ट एक ਤਾਂ ਬੱਚੇ इंप्योरिटी डिफेक्ट ਵਿੱਚੋਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ सो एक और क्वेश्चन बच्चे जिहड़ा इंप्योरिटी डिफेक्ट्स दे विचों आ सकदा है दैट इज ध्यान नाल सुनो इफ एल्यूमीनियम 3+ replace sodium plus at edge centers then calculate
then calculate the number of vacancies in 1 mole of सोडियम क्लोराइड। क्लियर बच्चे? ठीक है। सो अपन ने क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, डन। नाउ हुन अपन ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि 1 mole sodium chloride has 6.02 into 10 raised 23 formula units of sodium chloride। formula units अपन ने किनु यूज करने हैं? molecules ਲਈ बेसिकली, है ना। molecules in case of ionic compounds ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ formula units, है ना। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲਸ ਦੇ ਐਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਐਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? 3। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, देखो ध्यान नाल, हाँ जी, सोडियम क्लोराइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ कि कॉर्नर्स ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ FCC ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ क्लोराइड, यानी कि कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। सोडियम ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ऑक्टाहेड्रल होल्स। ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ऑक्टाहेड्रल होल्स। ऑक्टाहेड्रल होल्स ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬॉडी सेंटर, ਇੱਕ 12 ਐਜਸ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬॉडी ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਆਈ ਰਹੂਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਐਜ ਸੈਂਟਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਇਨਸ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਅਗਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਇਨਸ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਬਣੇ? 12 ਐਜਸ ਇਨਟੂ कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/4। सो 3 सोडियम बने बच्चे अपने को। क्लियर है कि नहीं? प्रदान के नहीं उन्ना 3 दी जगह ते, ठीक है, उन्ना 3 सोडियम आयंस दी जगह ते अपने कोल देखो, हम ध्यान नाल सुनो, सिर्फ एक एल्यूमीनियम की जरूरत है। मेरी गल समझ रहे हो ना? अगर एक एल्यूमीनियम आ गया तो तीनों सोडियम का चार्ज पूरा हो गया कि नहीं? यानी कि कितनी वैकेंसीज बन गया? 2, ठीक है ना। सो 1 एल्यूमिनियम 3+ will replace 3 सोडियम प्लस, ठीक है। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज पर फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, या पर अपा कर लो पर यूनिट सेल। सो पर यूनिट सेल, सो कितनियां वैकेंसीज क्रिएट हो गया? 2। आ गल समझ आ गई कि नहीं? ठीक है ना। 3 सोडियम की जगह पे एक एल्यूमीनियम आऊगा, जेड़े एक सोडियम की जगह पे एक एल्यूमीनियम आ गया, बाकी 2 की जगह पे की होगी? वैकेंसी क्रिएट, ठीक है। सो एक यूनिट सेल च कितनी वैकेंसीज आ गई? 2, ठीक है। ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਚ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 4। Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈकेंसीज, ठीक है, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? सो 4 formula units of NaCl has कितनी वैकेंसीज? 2 वैकेंसीज। आप पता चल लिया बच्चे की लिखा है आपने, ठीक है ना। एक यूनिट सेल दे विच 2 वैकेंसीज आ गई ते एक यूनिट सेल च ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 4 सोडियम क्लोराइड ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है ना। Z = 4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, यानी कि 4 फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड ਦੇ ਵਿੱਚ 2 वैकेंसीज ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ फार्मूला यूनिट्स ਹੈ? Na। सो 6.02 into 10 raised to power 23 formula units
formula units, ठीक है, have 2/4 into 6.02 into 10 raised 23, so half हो गया बच्चे, यानी कि 3.01 into 10 raised 23 वैकेंसीज होंगियां अपने कोल एनए फार्मूला यूनिट्स। क्लियर बच्चे? सो इन्हां क्वेश्चंस ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? क्वेश्चन समझ आ गया? क्लियर? ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਮੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਜਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਔਨ ਦ ਐਜਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ 12 ਐਜ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਐਜਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, 2 ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼। ਸੋ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ Na ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.01 into 10 raised to power 23 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੱਚੇ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਦਿਸ ਕੰਪਲੀਟਸ योर ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਫੁੱਲੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੁਡੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। that revision assignment contains the questions only related to structures and these numericals। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ what we shall do is ਕਿ ਅੱਜ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੈ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਟੁਮਾਰੋ ਫॉर ਵੈਂਸਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ tomorrow on Wednesday you will be having a theory test from the chapter, ठीक है? क्लियर? देखो आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਥਿਉਰੀ ਟੈਸਟ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ? and on Thursday we'll start off with your organic part, clear? and once again I repeat कि organically the lecture will remain available for a fixed time period, ठीक है ना? ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? I'll propose ਕਿ morning 8 to 10, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, morning 8 to 10 we'll keep the lectures, otherwise ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ will be fine for every student। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਕਚਰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, so it is very fine ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? but the lecture will be solely available for that particular time only। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗਾ and the lecture timing will be only and only for morning, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਜ਼ 9 to 10, ਤਾਂ 9 to 10 ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਟ ਯੈਸ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ I'll increase that time period for 2 hours या 3 hours, maximum 3 hours। that 3 hours will contain this 9 to 10 जो chemistry का original time है, so that can be from 6 to 9, 7 to 10, 8 to 11, whatever be the time। वो time ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ mutually decide करना है, you students and me, ठीक है? and a very 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 important assignment announcement, ठीक है बच्चे? in spite of repeated warnings कई students they are not at all responsive for the homework, ठीक है ना? so organic chemistry ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਫ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? so what I'll do is ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਮਵਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ I'll remove them from the group, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਲੈਕਚਰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੈ they can form a separate group, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ that is my duty, I've charged you, है ना? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ what I'll do is ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ then what they want is ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤਾਈਓ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ if they want, if their parents insist ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ। but yes I don't want non serious stuff into this group। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਆਈ ਰਿਮੂਵ them from the group strictly, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਮਾਈ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਟ ਆਫਟਰ ਦ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਡੂਇੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨੇਮਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਡੂਇੰਗ देयर ਹੋਮਵਰਕ, ਬਟ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ that is like a sheer wastage of time as well as money, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ I don't want ਕਿ towards the end of the year ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ I don't want that, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ I shall be removing them from the group. Whatever fee they have paid till now, they can come ਜਾਂ give me their accounts, I'll repay them, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। But yes, I don't want non-serious kind in organic chemistry at least, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ organic ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਲੈਕਚਰਸ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰੂਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਫ ਦੇ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਐਂਡ ਇਫ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ they will not be continuing in the same manner, they will also be removed, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ the result will be out ਅੱਜ evening ਜਾਂ ਕੱਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ some of the students will be removed from the group, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਥਿਊਰੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। So till then, keep studying, keep revising, and take very good care of your health. Thanks a lot, Bachche.